آئے ہم خداوند کی زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج ہم سب ان مبارک لوگوں میں شامل ہیں جو ہم خداوند کی بات کو مانتے ہیں، خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 7 ورس پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 7 ورس پڑھیں گے۔ جی خدا ان کا شکر ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دیکھ میں آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کلام مقدس میں ہم نے مکاشفہ کی معرفت لکھی گئی کتاب 22 باب 7 آیت میں پڑھا ہے اور سنا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں مکاشفہ کا آپ سے مطلب بیان کروں گی۔ مکاشفہ یعنی کہ ایک پوشیدہ راز، اس راز کو، پوشیدہ راز کو افشاں کرنا، ایک بھید، اس بھید کو کھولنا، اس سے پردہ اٹھانا۔ اور پردہ کون اٹھاتا ہے؟ خدا جو ہمارا باپ ہے، وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح پر اس کا مکاشفہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا کیا باتیں رونما ہوں گی۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے، وہ اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے اپنے بندہ یوحنا کے اوپر اس بھید کو کھولتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یعنی کہ اخیر زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس آموس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت میں یوں مرقوم ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزاروں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ خداوند خدا جو ہے، وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے بھید کو، جو صرف بھید ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے، اور اس بھید کو جب تک اپنے عزیز بندوں کے ساتھ شیئر نہ کر لے، اس وقت تک خداوند خدا کچھ نہیں کرتا۔ یہ مکاشفات خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور خداوند یسوع مسیح نے ایک فرشتہ کے وسیلہ سے اپنے بندہ یوحنا عارف پہ ظاہر کیے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آخری وقتوں میں ہونے والی ہیں۔ اور یوحنا جو خدا کا بندہ ہے، یہ پتمس کے جزیرہ میں قید تھا، اور وہاں خدا کا جو یہ مکاشفہ ہے اس پر نازل ہوتا ہے۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ مکاشفہ کے وسیلہ سے ایک بھید کو جاری کرتا ہے، اور اس مکاشفات کو، اس بھید کو کھولتا ہے، تاکہ جو خداوند کی کلیسیا ہے، اس روئے زمین پر لوگ رہتے ہیں، وہ ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا کے وفادار ہوں، اور ہمارے پاس ایک زندہ امید ہو جو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم اس پہ کامل ایمان لانے والے بنے۔ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس منصوبے کو خدا نے پہلے سے ہی دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا تھا، اس مکاشفہ کو خداوند نے ظاہر کر دیا تھا
इस इलाही मंसूबे की इब्तिदा जो है वो पहले से ही कर दी खुदा ने। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। हमने देखा है कि पैदाइश 49 उसके 10 वर्स में कि जब यहूदा अपने बेटों को बरकत देता है तो याकूब अपने बेटों को बरकत देता है तो यहूदा के लिए बरकत ये है, खुदा का बंदा याकूब अपने बेटे यहूदा को ये बरकत देता है कि यहूदा से जो है सल्तनत वो कभी नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं उसका मुजस्सम होना, उसका मुजस्सम होकर इस रोए जमीन पर आना और उसका मरना और मौत और कब्र पर फतह पाना और जी उठना और जाकर खुदा के दाहिने हाथ बैठना और फिर जल्द वापस आना, ये सब कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी पेशनगोइयों के मुताबिक है। कोई ऐसी बात नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी ना की हो। अब हम जो सब इस रोए जमीन पर हैं, हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो जल्द आता है। ये भी एक पेशनगोई है जो खुदावंद यीशु मसीह ने की है और ये पेशनगोई हमें बताती है कि वो जल्द आने वाला है। और जब वो जल्द आने वाला है तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? जब हमारे घर में एक मेहमान आता है तो हम किस कदर अपने घर को रेडी करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उनके लिए हम अच्छे से अच्छे खाने बनाते हैं ताकि हमारे मेहमान जो हमारे घर में आने वाले हैं वो आए और हमारे घर में बैठे और हमारे सारे सिस्टम से, हमारे सारे इंतजाम से वो खुश हों। ये तो हमारे जिस्मानी मेहमानों की बात है जो हम इस रोए जमीन पर रहते हैं और हमारे घरों में आते हैं और हम उनके लिए ये सारे इंतजामात करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। हमें सोचना है कि आज हम जबकि वो जल्द आने वाला है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि उसके लिए जब वो आने वाला है तो हम उसके लिए किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे कपड़ों को नहीं देखेगा, हमारे घरों को नहीं देखेगा कि हमने किस तरह से तरतीब दिए हुए हैं, किस तरह से सजाए हुए हैं। वो नहीं देखेगा कि हमने खाने किस तरह से बनाए हुए हैं। वो हमें जल्द हमारे पास आने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईमानदार लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका ये वादा है कि वो जल्द आने वाला है। वो हमें यतीम नहीं छोड़ता, वो हमें अपने साथ लेके जाने को आने वाला है। आए हम खुदावंद की जिंदा और बाबरकत कलाम में से दूसरा पतरस उसका 3 बाब और 3 आयत से 4 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 3 आयत से 4 आयत तक। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस जबकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं तो कलाम मुकद्दस में से हमने सुना है दूसरा पतरस, खुदा का बंदा पतरस
उसका 3 बाब 3 आयत से हमने 4 आयत तक कलाम मुकद्दस में से तिलावत सुनी, जो कि नैयर भाई ने हमारे साथ वर्ड ऑफ गॉड शेयर किए हैं। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। बहुत सारे लोग हैं, हम सब जानते हैं, जो ना खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने का यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि अभी खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, और ना ही उसकी दूसरी आमद का यकीन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त आखिर वक्त है। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ये आखिरी अयाम से हम गुजर रहे हैं, आखिरी दिन है। और इन दिनों में भी खुदावंद यीशु मसीह का बंदा पतरस कहता है कि ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के आने का यकीन नहीं करते, और वो आज भी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में ख्वाहिशात क्या है। हमारी बुरी ख्वाहिशात जो हैं वो हर वक्त हमें खुदावंद से दूर रखती हैं। हमें हसद, नफरत, तफिरकेबाजियां, लड़ाई झगड़े, जनाकारियां, शराब नोशी, ये सब बातें जो हैं हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर रखती हैं। और ये सब बातें जब हम दुनियावी होते हैं और ये सब बातें हम में पाई जाती हैं, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के आने का इकरार किस तरह कर सकते हैं कि वो जल्द आने वाला है। फिर तो हम यही कहेंगे कि हम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं, बाप दादा ने भी सुना, उनके आबाओ अजदाद ने भी सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मेरे अजीजों, आज भी जो अपनी ऐसी रविशों में मुबतला हैं, वो यही बातें सोचते हैं कि अभी खुदावंद यीशु मसीह में बहुत टाइम है, बहुत देर है। जिस तरह नूह के जमाने में खुदावंद का कलाम फरमाता है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17 बाब और उसकी 26 आयत को हम नैयर भाई के साथ तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17 बाब और उसकी 26 आयत को हम सुनेंगे। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। आमीन। आमीन। हमने कलाम मुकद्दस में से सुना, पुराने अहदनामे की ये एक वर्स है जो पैदाइश में भी दर्ज है, और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, ये जो वर्ड है ये खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए हैं। और खुदा का बंदा लूका रसूल ये लिखता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नूह के दिनों में क्या हुआ था? कलाम मुकद्दस हमें साफ साफ बताता है कि लोग खा पी रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, अपने दुनियावी कामों में लोग मगन थे, और खुदावंद का दिन जो है वो आ गया। क्या हुआ? खुदा का बंदा नूह जो है वो 120 साल तक खुदावंद के कलाम की मनादी करता रहा कि तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, खुदावंद के गजब से बचो। खुदावंद ने कहा है कि मैं इस दुनिया को रोए जमीन से मिटा डालूंगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? एतबार ना किया, वो ईमान नहीं लेके आए, और वो लोग अपनी ही रवशों में मुब्तला रहे। आज भी हमने दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 3 से 4 आयत तक यही पढ़ा है कि आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे कि वो हंसी मजाक करेंगे, ठट्ठेबाजियों में होंगे, और वो खुदावंद के कलाम पे अमल नहीं करेंगे, और खुदावंद के इस पेशनगोई पे अमल नहीं करेंगे कि वो जल्द आने वाला है। क्योंकि नूह के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने नूह की
तालीम पर, नूह की कलाम पर जो खुदा ने अपने बंदा से किया था कि मैं इस ज़मीन से इंसान को मिटा डालूंगा, उन्होंने यकीन ना किया। और क्या हुआ? 40 दिन और 40 रात मी बरसा, ज़मीन के सोते फूट निकले, आसमान की खिड़कियां खुल गईं और बारिश इतनी कसरत से बरसी कि क्या इंसान, क्या हैवान, चरिंद परिंद, क्या पहाड़, क्या टीले, सब फना हो गए सिवाय नूह के कबीले के। और वो कुल जाने 8 थीं। और खुदावंद ने जैसा अपने बंदा नूह को फरमाया कि हर एक जानदार का जोड़ा जोड़ा कश्ती में लेके आना, वो लेके आया। और खुदावंद ने उनको भी बचाया और उनको बरकत दी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे दरमियान ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो खुदावंद के आने का यकीन नहीं करते। तो फिर जब वो खुदावंद के आने का यकीन नहीं करते तो फिर खुदावंद का दिन जो है वो चोर की मानिद आता है। खुदावंद का दिन जो है वो चोर की मानिद आएगा। वो ज़ाहिरी नहीं आएगा कि हमारे कहने से हो कि देखो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ है या वहाँ है। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो हर इंसान उसे देखेगा, हर आंख उसको देखेगी, हर घुटना उसके हजूर झुकेगा। वो छुप कर नहीं आएगा। लेकिन उस दिन को बेटा भी नहीं जानता सिवाय बाप के। इसलिए हम भी नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन जब हम बहुत सारी निशानियां देखते हैं जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, आज हम निशानियों पे बात नहीं करेंगे, डिटेल से बात नहीं करेंगे। जिस तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लड़ाई झगड़े होंगे जगह जगह, तूफान आएंगे, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, कत्लो गारत होगी, माँ बेटी की मुखालफत करेगी, बहू सास की करेगी, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये सब हम निशानियां देख रहे हैं और हम देखते हैं कि खुदावंद का वक्त जो है वो नजदीक है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब 1 आयत से 3 आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 14 बाब 1 आयत से 3 आयत तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें बहुत बड़ी तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब जगह तैयार कर लूं तो आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये बहुत बड़ा वादा है कि वो आकर हमें लेके जाने को आएगा। वो हमें गुनाह की जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन हमारी सबकी अदालत होनी है और जो उसके लोग हैं, उसकी कलीसिया है, उनको वो लेने के लिए फिर आएगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हमने यही सुना है कि वो दोबारा आएगा, वो जगह तैयार करने के लिए गया हुआ है। और जब तैयार हो जाएगी तो वो वक्त आएगा कि वो जल्द हमें लेने आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। और कलीसिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो हमें लेने आएगा। जो उसमें कायम है वो उसे लेने आएगा, और जो उसमें कायम नहीं है उनको वो छोड़ देगा। आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अमाल की किताब 1 बाब उसकी 10 और 11 आयत को दोबारा से सुनेंगे। यहां भी खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ा वादा किया है। अमाल 1 बाब 10 आयत से 11 आयत तक। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने
ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں جب خداوند یسوع مسیح ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، 40 دن اور 40 رات تک اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، ان پر ظاہر ہوتے رہے، اور جب ان کا صعود فرمانے کا وقت آیا تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہاں ان کے ہم نے کلام مقدس میں سے سنا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 سفید پوشاک پہنے ہوئے 2 مرد تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ جس طرح یہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح اس روئے زمین پر واپس آئے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بہت جلد واپس آ رہا ہے تاکہ وہ اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کے جائے۔ وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس طرح کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ جلد آئے گا، تو میرے عزیزو وہ اب بہت جلد آنے والا ہے، وقت نزدیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں اپنی جسمانی تیاری نہیں بلکہ ہمیں اپنی روحانی تیاری کرنی ہے۔ ہم 10 کماریوں کی جب تمثیل پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ جو 5 تھی وہ ہوشیار اور عقل مند تھی، اور 5 جو تھی وہ بے وقوف تھی، اور جو عقل مند تھی ان کے کپیوں میں تیل تھا، اور دھولا نے آنے میں دیر لگائی کیونکہ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ دھولا کب آئے گا۔ دھولا جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم سب نہیں جانتے کہ دھولا کب آئے گا۔ اسی طرح وہ 10 کماریاں بھی نہیں جانتی تھی کہ دھولا کب آئے گا، لیکن ان میں سے 5 کماریاں جو تھی ان میں وہ عقل مند تھی، ان کے پاس ان کی کپیوں میں تیل تھا تاکہ وہ دھولا کے استقبال کے لیے جائیں، اور جو 5 تھی وہ بے وقوف تھی، ان لوگوں کی مانند جو اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے ابھی بھی آنے کا انکار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو ٹھٹھوں میں گزارتے ہیں، ہنسی مذاق میں گزارتے ہیں، اور ہر طرح کی بری روش میں مبتلا ہیں۔ وہ بالکل ان 5 کماریوں کی طرح ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم 5 کماریاں جو عقل مند تھی، ہم ان میں سے ہیں یا ہم ان بے وقوف کماریوں کی مانند ہیں جن کے پاس تیل نہیں تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں جب ہم کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر اس نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، تو ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پہ آئیں گے تو ہر قوم اس کے آگے جھکے گی، ہر قبیلہ اس کے آگے جھکے گا، اور زمین کے سب قبیلے اس کے وسیلہ سے چھاتی پیٹیں گے۔ ان کے لیے بہت بڑا بھیانک دن ہوگا جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے۔ لیکن جو خداوند یسوع مسیح میں قائم ہیں، جو اس کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور ہم اس دن کو نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا۔ ہمیں ان 5 جو عقل مند کماریاں تھیں ان کی طرح اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، اپنے اندر کلام کا تیل، روح کا تیل رکھنا ہے، تاکہ جب ہمارا دھولا آئے تو ہم اس کے استقبال کو نکلیں، اور جب وہ دروازہ کھولے تو ہم اس کے ساتھ اندر ضیافت میں شامل ہو جائیں، اس کی شادی میں شامل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے 5 کماریاں جو بے وقوف تھی، ان کو خداوند نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ ہمیں اپنی روحانی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ جلد آ رہا ہے، ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آیت پڑھتے ہیں۔ جی، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی
ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब 19 बाब 7 आयत में मरकूम है, आओ हम खुशी करें। हमें दुख नहीं करना। दुख उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को बर्रा के लिए तैयार नहीं किया, दुल्हा के लिए तैयार नहीं किया। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारा दुल्हा आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। कलाम मुकद्दस मुकाशफा की किताब 19 बाब 7 आयत में मरकूम है, आओ हम खुशी करें। हमें खुदावंद जल्द आने वाला है, इस बात को हमने पढ़कर सुनकर दुखी नहीं होना। हमने खुशी मनानी है कि हमारा यस्सु हमें लेने आ रहा है। हमें नहायत शादमान होना है कि हमारा यस्सु हमें लेने आ रहा है। हमें उसकी तमजीद करनी है, उसकी हमदस्ताइश करनी है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह हमें लेने आ रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी बीवी जिस तरह एक जिस्मानी दुल्हन अपने आप को जिस्मानी दूल्हा के लिए तैयार करती है, और दूसरे लोगों की, घर वालों की भी कोशिश यही होती है कि उसमें कोई नुक्स ना हो, एक जिस्मानी दुल्हन में कोई नुक्स ना हो, क्योंकि वो अपनी दुल्हा के पास जा रही है। इसी तरह हमारा रूहानी दुल्हा भी आने वाला है और हमें बड़ी खुशी करनी है, शादमानी करनी है। हमें दुखी नहीं होना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारा रूहानी दुल्हा, हमारा यस्सु बहुत जल्द आने वाला है और उसके लिए हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि हम में कोई नुक्स ना हो, हम में कोई ऐब ना हो, हम में कोई झुर्री ना हो, ताकि हम उन होशियार और अक्लमंद कंवारियों की मानद ठहरे जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ ले लिया, अपनी ज़ियाफत में शामिल कर लिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आपको, मुझको, मेरे भाई को और हमारे सब घरानों को कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब वक्त हो शुक्रगुजारी गया, की दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम पूरी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। कदूस, मेहरबान, जिंदा आसमानी बादशाह, कादर मुतलक बाप, तो जो था, जो है और जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि आज तो खुदावंद जब हम तेरे मज़बा पे खुदावंद तेरे हजूर झुके हैं, तूने हमारी बड़ी मदद की, बड़ी रहनुमाई की। तूने अपने रूह पाक को हमारे साथ किया ताकि वो हमें गाइड करता रहे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद मीटिंग लीड करने वाली बेटी के लिए। खुदावंद खुदा जिसने खुदावंद आज मीटिंग लीड की, उसके लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ, उसके घराने के लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद आज के सारे परस्तारों के लिए खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद तेरे हजूर बदासराई की, खुदावंद उन सब के लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ खुदावंद खुदा। निगर भाई के लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ, जिसके वसीला से हमने खुदावंद तेरे कलाम को सुना और खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बातों को हमने सीखा। खुदावंद मैं अपने लिए बरकत चाहती हूँ, अपने भाई के घराने के लिए, आई हुई एक एक जान के लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ। इसी तरह खुदावंद हमें रूहानी बेदारी इनायत करना ताकि हम हमेशा खुदावंद हर वक्त खुदावंद खुदा, हर लम्हा खुदावंद खुदा तुझ पर निगाह रखें और खुदावंद खुदा रूहानी बेदारी के साथ खुदावंद रूहानी मजमूर और गीत गाते रहें और हमेशा तुझ में शादमान रहें। और तेरे आने के लिए खुदावंद जबकि तू जल्द आने वाला है, अपने आप को चेक करें कि हम में कोई कमी तो नहीं है, हम में कोई झुर्री तो नहीं है, ताकि हम खुदावंद खुदा तेरे लायक ठहरें। जब तू बादलों पे आए तो हम भी सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे और हमें दोबारा मौका बख्श देना, शर्फ बख्श देना कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर फिर तेरे हजूर में झुकें और खुदावंद तेरे नाम को तम दर्जा देने वाले बने। मांगा सो पा लिया अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।